Good morning students, welcome to our social science class, that is 9th chapter, the earth our habitat, day and night. Due to daily motion of the earth, day and night occur. As the earth is tilted and rotates on its own axis, the sun shines only on half of it and the other half is dark. If earth would not have rotated, then on one side only light would have been there, while on the other side it would have remained dark. But it is not so. Thus every part of earth experiences light from darkness and darkness from light in every 24 hours. Because of it, every part of the earth experience morning, afternoon and evening. As the earth is tilted on its axis, we find difference in the length of day and night. तो डे नाइट कैसे होते हैं? जो हमारा अर्थ है वो रोटेट होता है अपने एक्सिस पर. अब जब वो सन के सामने आता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो पार्ट सन के सामने आता है वहाँ पे लाइट पड़ती है या सन के सनरेज पड़ते हैं, तो वहाँ पे डे होता है और दूसरे पार्ट पे नाइट होता है. और जब वो रोटेट होता है, जब दूसरी पार्ट सन के सामने आता है तो तब क्या होती है, वहाँ पे लाइट पड़ती है, सनरेज होता है, तो वहाँ पे डे होता है और दूसरी पार्ट में नाइट होता है. अगर हमारा अर्थ रोटेट नहीं होता तो क्या होता, एक भाग में पूरे दिन ही होता, मतलब डे होता, और दूसरे पार्ट में पूरा नाइट रहता. लेकिन अभी ऐसा नहीं है. तो रोटेट की वजह से क्या होता है, पूरे 24 आवर्स में हमको डे नाइट देखने को मिलते हैं. और वो हम एक्सपीरियंस करते हैं कि मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग. Sun rays fall directly on Tropic of Cancer on 21st June and on Tropic of Capricorn on 22nd December. Where the sun's rays fall directly and in the adjacent areas, the days are longer and the nights are shorter. Where the sun rays fall diagonally, the days are short and the nights are long, while days and nights are of same length on 21st March and 23rd September. जहाँ सनरेज डायरेक्टली पड़ते हैं, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 21 जून को क्या होता है, वहाँ पे सनरेज डायरेक्टली पड़ते हैं, और 22 दिसंबर को भी. तो क्या होता है, वहाँ पे डेज लॉन्गर होते हैं और नाइट शॉर्टर होते हैं. और जहाँ पे स्लैंटिंग रेज पड़ते हैं वहाँ पे डेज शॉर्ट होते हैं और नाइट लॉन्ग होते हैं. Seasons. As the earth is tilted on its axis, one by one northern hemisphere and southern hemisphere come in front of the sun. The rays of sun fall straight on the north or south of the equator. Thus there is a difference in day and night. In the areas where sunshine is for longer time, they experience summer, whereas the areas the sunshine is for shorter time, they experiences winter. Seasons directly affects the human life. तो सीजन्स किसके वजह से होते हैं, जो हमारा अर्थ रोटेट होता है उसके ओन एक्सिस पर. जब वो रोटेट होता है तो जब वो सन के सामने जब नॉर्थ हेमिस्फेयर आता है तो वहाँ पे क्या होगा, समर होगा. तो उस टाइम पे साउथ हेमिस्फेयर में क्या होगा, विंटर होगा. तो ऐसे ही वो रोटेट करते हुए फिर से जो सब सन के सामने जो साउथ हेमिस्फेयर आएगा तो वहाँ पे समर होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगा. उत्तरायण. द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन बिगिन टू फॉल टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर. दस द नॉर्दर्न solstice occurs on 22nd December. Sun enters मकर राशि on 14 January. So it is called मकर संक्रांति. तो हम लोग उत्तरायण मनाते हैं ना, तो उत्तरायण क्यों कहते हैं उसको, जो हमारा सन है उसके डायरेक्ट सन रेज क्या करते हैं, नॉर्थ इक्वेटर पर पड़ते हैं. तो ये 22 दिसंबर से स्टार्ट होता है. तो जब सन मकर राशि में एंटर होता है 14 जनवरी को, तब हम इसको उत्तरायण कहते हैं या मकर संक्रांति कहते हैं. दक्षिणायन.
From 22nd June, the direct rays of the sun shift from Tropic of Cancer towards south of equator. It is called the दक्षिणायन. जब सन रेज डायरेक्टली 22 जून को पड़ते हैं तो उसके बाद वो साउथ हेमिस्फेयर में शिफ्ट होते हैं, तो इसको हम दक्षिणायन कहते हैं. इक्विनॉक्स. सन एंड द इक्वेटर intersect each other twice in a year. This intersection is called equinox. During the equinox, sun moves towards the northern hemisphere. So from 22nd March, length of days increase and nights become short. On 21st June, longest day and shortest night is experienced in the northern hemisphere. As the sun moves towards the southern hemisphere from 24 September, length of the days start increasing and nights become shorter. On 22nd December, days are longest and nights are shortest in southern hemisphere. During the year, on 21st March and 23rd September, sun rays fall straight on the equator, because of which nights and days are equal. It is called equinox. जब सन एंड द इक्वेटर इंटरसेक्ट ईच अदर ट्वाइस इन अ ईयर, तो वही 2 बार जो सन और इक्वेटर इंटरसेक्ट होते हैं तब इसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं. ड्यूरिंग द इक्विनॉक्स, सन मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. तो इक्विनॉक्स में क्या होता है, जो सन है तो वो नॉर्थ हेमिस्फेयर की तरफ मूव करता है. कब करता है वो? 22 मार्च. तो तब वहाँ सन रेज डायरेक्टली वहाँ पे पड़ते हैं, तो वहाँ पे डेज इंक्रीज एंड नाइट्स बिकम शॉर्टर. तो डेज बड़े होते हैं और नाइट शॉर्ट होते हैं. ऑन 21st जून, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इज एक्सपीरियंस्ड. तो सेम वे जब 21 जून को दिन बड़ा होता है और नाइट छोटा होता है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हुआ. तो वैसे ही सेम जब सन मूव्स करता है साउथर्न हेमिस्फेयर में, तो 24 सितंबर को क्या होता है, द लेंथ ऑफ डेज स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड नाइट्स बिकम शॉर्टर. ऑन 22 दिसंबर, डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टेस्ट इन साउदर्न हेमिस्फेयर. ड्यूरिंग 21 मार्च और 23 सितंबर को सनरेज क्या होते हैं, स्ट्रेटली इक्वेटर पर पड़ते हैं, तो वहाँ पे डेज और नाइट इक्वल होते हैं, तो इसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं. लीप ईयर. सिंस 1 year of earth is 365 days and 6 hours, but it is difficult to calculate 1/4 of the day, so we count year as having 365 days. In order to compensate, remaining 6 hours are added to the month of February every year. That is, February has 29 days in place of 28 days. We call that लीप ईयर. तो लीप ईयर क्या होता है, 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं, तो उसके अलावा 6 आवर्स हम उसके अंदर काउंट करते हैं. जो हर साल का 6 ईयर्स को काउंट करते हुए 4 ईयर्स में कितने हुए, 24 आवर्स हुए. तो हम इस 24 आवर्स को 4 साल के बाद फरवरी में काउंट करते. तो इसलिए फरवरी में कभी 4 साल में 29 डेज़ होते, तो उसको हम लीप ईयर कहते हैं. Eclipse. We get light from the sun and the moon. Sun is self-illuminated and shines brightly, while the moon is illuminated with the light of the sun. The illuminated part is seen on the earth on different days. An occasion when moon or the sun seem to be completely or partially disappearing because one of them is passing between the other and the earth. In such situation it is eclipse. तो eclipse क्या होता है, जो मून है उसका जो कोई भी लाइट नहीं है, जो सन के रेज उसके ऊपर पड़ते हैं तो वो शाइन करता है. सोलर एक्लिप्स. मून इज क्लोज टू द अर्थ. It revolves around the earth. Sometimes while revolving it comes between the sun and the earth. At this time, as the shadow of the moon constrains
सन इज़ नॉट विजिबल, दिस इवेंट इज़ कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। तो सोलर एक्लिप्स क्या होता है, जो मून है वो अर्थ को रिवॉल्व करता रहता है, जब वो रिवॉल्व करता है तो कभी क्या होता है, तो वो सन के सामने आ जाता है, तो जो सन रेज है तो अर्थ पे नहीं पड़ते, मतलब जो सन का सनलाइट है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाते, तो इसको हम क्या कहते हैं, सोलर एक्लिप्स। जो मून है वो अर्थ से छोटा है एज़ कम्पेयर टू सन, जो हमारा मून है वो छोटा है, तो इसलिए वो एक्लिप्स पूरे वर्ल्ड में एक साथ में नहीं दिखाई देता, ये पार्शियली दिखाई देता है। लूनर एक्लिप्स, मून गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, thus if the sun is going towards the moon are obstructed by the earth, then the part of moon remains dark. In nutshell, that much part of the earth's shadow falls on the moon. This part is not visible to us, which is called a lunar eclipse. Such event occurs on full moon night, but such events do not take place on every full moon night. तो लूनर एक्लिप्स क्या है, जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, और जब अर्थ और मून और सन के बीच में जब अर्थ आती है, जो सन के रेज है वो मून पर नहीं पड़ते, तब हमको मून दिखाई नहीं देता है, तो उसको हम लूनर एक्लिप्स कहते हैं। ओके, सो टुडे वी विल फिनिश अवर 9th चैप्टर। तो यू हैव टू ड्रॉ द eclipses in your notebook, that is solar eclipse, lunar eclipse and tropics zone. Okay.